Good morning, everyone. I hope you all are taking good care of yourself. So, students, we have left our previous lecture with this particular topic, that is vulnerable groups. So, there are two types of vulnerable groups. The first one is social group, second one is economic group. In social group, we have scheduled caste and scheduled tribe, the backward caste, those who have been socially excluded, and in social group, in economic group, we are having rural agricultural labor household and urban casual labor household. Rural agricultural labor households, these are those people who are landless and they are living in rural areas. So landless laborers are also can be called as rural agricultural labor household. And urban casual labor households, these are those people who live in urban area but they are daily wage workers. Might be they are working in construction site or any other site, but they are getting wages on daily basis, so these are casual labor. So we have two groups in vulnerable section, that is the social group and economic group. Social group, we have scheduled caste, scheduled tribe. In economic group, we are having rural agricultural labor household and urban casual labor household. They are more vulnerable to poverty, they are more prone to poverty. This also we have done. Now, these 2 points are most important ones, so let's just read it. The double disadvantage of being a landless casual labor household in socially disadvantaged social group of scheduled caste and scheduled tribe population highlights the seriousness of problem. अच्छा, अब क्या डबल डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है? दो दो डिसएडवांटेज एक इंसान फेस कर सकता है। कौन सा इंसान फेस कर सकता है? वो जो कि कौन है, एक अर्बन कैजुअल लेबर है, अर्बन कैजुअल लेबर या रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउसहोल्ड, कुछ भी हो, मतलब वो इकोनॉमिकली तो वल्नरेबल हो ही जाएगा। और सपोज करो वो कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता हो, बैकवर्ड कास्ट को बिलोंग करता हो, मतलब वो सोशली भी वल्नरेबल हो जाएगा। तो जब कोई पर्सन इकोनॉमिकली और सोशली दोनों ही वल्नरेबल हो जाए, उसको हम कहेंगे कि दिस पर्सन इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डबल डिसएडवांटेज। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दिस, that he's a landless labor or he's a casual labor who is economically vulnerable. ठीक है। सेकेंड डिसएडवांटेज इज दैट ही बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट, SC ST कोई भी कास्ट को बिलोंग करता है वो, तो ये सोशली भी वल्नरेबल हो जाएगा। तो जब ये दोनों ही प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, उसका मतलब क्या है? ही इज फेसिंग डबल डिसएडवांटेज, इज फेसिंग द प्रॉब्लम कॉल्ड एज डबल डिसएडवांटेज। और ये चीज अगर कोई इंसान फेस करे, तो आप सोच सकते हो कि उसके साथ कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, वो कितना उसकी उसकी जो लिविंग है वो कितनी वर्स्ट होने वाली है, आप खुद सोच सकते हो। फिर एक अच्छी चीज के, एक गुड न्यूज के, 1990s के बाद क्या देखा गया है स्टूडेंट्स? शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़ के बाकी तीनों जो अपन ने ग्रुप्स की बात की है, SC ले लो, अर्बन कैजुअल लेबर ले लो, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर ले लो, इनकी जो पॉपुलेशन है पॉवर्टी से वो बाहर निकलती आ रही है। पॉवर्टी का जो परसेंटेज है कि इनकी इतनी परसेंटेज पॉपुलेशन पॉवर्टी फेस कर रही है, तो वो जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रही है। पॉवर्टी से ये लोगों ने अपने आप को बाहर निकाला है। अब हम बात करते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। नाम से पता चल रहा है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब एक पुअर फैमिली में रहने वाले भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुअरेस्ट होते हैं। एक पुअर फैमिली में ईच एंड एवरी वन सफर, बट देर आर सम पर्सन, देर आर सम इंडिविजुअल्स, देर आर सम ग्रुप हु सफर मोर देन अदर्स। ठीक है, तो उनको पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का कैटेगरी दी गई है, ये टैग उनके सामने लगाया गया है। There is inequality of income within a family. In poor families, all suffer, but some suffer more than others. एक poor family में each and everyone is going to suffer, but there are some individuals who will suffer more than others, whose suffering are more than others, and they are considered as the poorest of the poor. ठीक है, अब वो होते कौन है, जरा बात करते हैं। Women, elderly people, and female infants are denied equal access to resources available to the family. So poorest of the poor की कैटेगरी, ये टैग किसको मिला गया है? विमेन को। सारी की सारी जो भी सारे विमेन होती हैं, जो एल्डर पीपल होते हैं, और जो फीमेल इन्फेंट्स, हम यहाँ पे चाइल्ड की बात कर रहे हैं, वो भी गर्ल चाइल्ड, नॉट अ मेल चाइल्ड। तो जो गर्ल चाइल्ड होती है, जो फीमेल इन्फेंट्स होती हैं, इनको पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की कैटेगरी में डाला गया है। एक पुअर फैमिली में ये रह रहे हैं, पुअर फैमिली में एक मैन और बॉय भी रह रहा है, एक मेल चाइल्ड भी रह रहा है, बट सफरिंग्स इन तीनों की ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर्स। ठीक है, therefore women, children, especially the girl child and the old person आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी, अपन स्टोरी की बात करते हैं सिवारमन, आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में हमने विमेन, एल्डरली पीपल और फीमेल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड को ही क्यों डाला है। सिवारमन की स्टोरी पढ़ते हैं स्टूडेंट। सिवारमन एक लैंडलेस लेबरर है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही बिलोंग्स टू अ बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, दैट मीन्स ही इज गोइंग टू सफर डबल डिसएडवांटेज वाली प्रॉब्लम।
अब वो ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ही लिव्स इन अ करूर विलेज, ठीक है? वहाँ पे ये लैंडलेस है, दूसरों के लैंड पे वर्क करता है और ही अर्न ₹50 अ डे। एक दिन में ₹50 कमाता है। अच्छा, अब इसकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। देयर आर 8 मेंबर्स इन हिज फैमिली। ही हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज 4 चिल्ड्रन, हिज मदर एंड हिज यंगर सिस्टर। ठीक है? तो ये ऐसे करके 8 मेंबर्स हैं इसकी फैमिली में। अब चलो एक-एक करके समझते हैं, फिर अपन कंक्लूड करेंगे कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में वो लोग क्यों आते हैं। शिवारमन जो है स्टूडेंट, शिवारमन ₹50 कमाता है, जो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है उसकी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एक 8 मेंबर वाली फैमिली को सेटिस्फाई करने के लिए ₹50 आर नॉट एट ऑल सफिशिएंट। ठीक है? तो वो क्या करते हैं, उसकी जो वाइफ है, उसकी वाइफ का नाम है शशिकला। उसकी वाइफ भी वर्क करती है। जिस फार्म पे, जिस लैंड पे वो शिवारमन वर्क करने जाता है, उसी लैंड पे कब वो हेल्प करती है उसकी वाइफ शशिकला भी। बट एक तरह की इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, वो क्या? सेम वर्क करने के लिए, सेम हार्ड वर्क करने के लिए, सेम टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, सेम स्वेट इन्वेस्ट करने के लिए भी शिवारमन को मिलते हैं ₹50 अ डे, वहीं पे शशिकला को मिलते हैं ₹25 अ डे। ये जो इनइक्वालिटी है ये वहां पे देखने को मिलती है। एक इक्वल काम जना कर रहा है, बट बिकॉज शी इज अ वुमेन एंड ही इज अ मैन, तो इनकी जो सैलरी है, इनकी जो वेजेस है, उसमें डिफरेंशिएशन है। वो ₹50 कमाता है शिवारमन, वहीं पे उसकी जो वाइफ है शशिकला, शी यूज टू अर्न ₹25 अ डे बाय वर्किंग सेम, by working on same land and by investing same time, by investing same hard work, हर चीज सेम बिल्कुल करने के बाद भी उसको ₹50 मिलते हैं, उसको ₹25 मिलते हैं। ये होगी उसकी वाइफ की बात। अब उसकी मम्मा की बात करते हैं, जो शिवारमन की मदर है। शी इज वेरी एल्डर एंड शी इज वेरी इल, यू कैन से। अब उनके ट्रीटमेंट का तो वो क्या ही खर्चा उठाए, ₹50 अर्न कर रहा है वो इंसान, तो वो क्या ही खर्चा उठाएगा। तो उसकी वाइफ, उसकी जो मदर है, वो सोचती है कि भाई आज नहीं तो कल वो मर जाना चाहती है, तो उनका सोच इस तरह का है, उसको लगता है कि मैं बर्डन हूँ फैमिली के लिए। अब अपन बात करते हैं शिवारमन की सिस्टर की। शिवारमन की सिस्टर जो है, उसको वो 25 ईयर ओल्ड है, अनमैरिड है। शिवारमन के पास इतनी सफिशिएंट डाउरी, पैसा नहीं है, डाउरी ले लो, कि शादी वो करा सके अपनी बहन की, तो वो अनमैरिड है। शशिकला को उसकी शिवारमन की सिस्टर जो है वो एक तरह का बर्डन लगती है, कि हमारा एक बोझ है, ये शादी करके जाए तब जाके तुम अपने बच्चों को पाल सकूं। तो ये हो गई उसकी सिस्टर की कहानी। अपन बात करते हैं शिवारमन के बच्चों की बात। शिवारमन इज हैविंग 4 चिल्ड्रन, ठीक है? पहला, फर्स्ट वन इज गर्ल, सेकंड वन इज आल्सो गर्ल, थर्ड वन इज आल्सो गर्ल एंड द लास्ट वन इज अ बॉय। मतलब एक बॉय की डिजायर से उन्होंने, शिवारमन ने 3 बेटियों को, 3 डॉटर्स को पैदा करा, और फिर उन्होंने अपने एक बॉय को, एक लड़का उनका पैदा हुआ। अब शिवारमन एक ही घर में क्या करता है, एक साइड आप रखो 3 डॉटर्स और एक साइड रखो आप उसका बेटा। शिवारमन ने बिल्कुल भी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया अपनी बेटियों को, अपनी डॉटर्स को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं इनकी एजुकेशन पे खर्चा क्यों करूँ? मेरे को इनकी शादी पे खर्चा करना है, सो कॉल्ड डाउरी मुझे देनी ही है, तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन एजुकेशन? ठीक है? तो उसका सोच इस तरह का है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करता एजुकेशन पे। वो उनके उनके लिए, उन तीनों डॉटर्स के लिए एजुकेशन या बुक्स जो है एक लग्जरी आइटम है, जो उनको कभी मिलने वाली नहीं है। ठीक है? ये उसके पापा की सोच है, शिवारमन की सोच है। वहीं पे शिवारमन ने अपने बेटे के लिए सोच रखा है कि हाँ, मैं इसको पढ़ाऊँगा-लिखाऊँगा, मैं इसको एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा, ये मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन के आएगा। जबकि गर्ल्स को वो एक तरह का बर्डन मानता है कि मैं इनको क्या पढ़ा-लिखा के करूँ, इनका पैसा इकट्ठा करती हूँ उनकी शादी के लिए। फिर कभी-कभार शिवारमन क्या करता है, कुछ पैसे ले आ कुछ कुछ चीज़ें ले आता है, जैसे मिल्क ले आया, ठीक है? कुछ थोड़ा बहुत, छोटा बहुत, थोड़ा बहुत मिल्क ले आया, मिल जाता है। और वो मिल्क भी किसके लिए लेकर आता है? वो अपने बेटे के लिए लेकर आता है, अपनी डॉटर्स के लिए नहीं लेकर आता। तो एक तरह की ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो सफरिंग है, ये हमको उन 3 सेक्शन में ज़्यादा देखने को मिली। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगी, आप मुझे क्वेश्चन्स के आंसर बताना। आप मुझे बताओ, शिवारमन एक साइड लो, शशिकला एक साइड लो, कौन ज़्यादा सफ़र कर रहा है? शशिकला सफ़र कर रही है यार, वो ₹25 डे अर्न कर रही है, वहाँ पे वो ₹50 कर रहा है, जबकि सेम वर्क है, सेम मेहनत है, सेम टाइम है, सेम लैंड, हर जगह सब कुछ सेम, बट शी इज़ अर्निंग ₹25 अ डे एंड ही इज़ अर्निंग ₹50 अ डे। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज़ अ काइंड ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी बिटवीन इन आवर सोसाइटी। ठीक है? फिर द सेकंड मैं आपको एल्डरली का लूँ, तो मैंने आपको एल्डरली दिखाई दिया कि उनको लगता है कि मैं बर्डन हूँ।
फिर एक साइड आप उनकी शिवारमन की तीनों डॉटर्स लो और एक साइड आप उसका बेटा लो। कौन ज़्यादा सफ़र कर रहा है? ऑब्वियसली 3 डॉटर्स। एजुकेशन भी उनको नहीं मिलेगी, मिलेगी सिर्फ़ सन को। खाना भी उनको नहीं मिलेगा प्रॉपर, अगर कोई ऐसा लग्ज़री आइटम आता है, कोई ऐसा अच्छी चीज़ दूध-वूध आता है, तो वो भी उसको बेटे को मिलेगा। तो एक तरह से सफ़रिंग किनकी ज़्यादा है? कौन ज़्यादा सफ़र कर रहा है? भई पुअर फैमिली में शिवारमन भी रह रहा है, उस फैमिली में शिवारमन का बेटा भी रह रहा है, बट सफ़रिंग ज़्यादा किसकी है? उसकी वाइफ़ की ज़्यादा है, एल्डर पीपल की ज़्यादा है और फीमेल इन्फेंट्स की ज़्यादा है सफ़रिंग, उनकी ज़्यादा नहीं है, मेल इन्फेंट की नहीं है, ना ही शिवारमन की। अगर हम उसके अकेले की देखें, तो उसकी इतनी सफ़रिंग नहीं है, उसको अपने काम के अकॉर्डिंग इतना अच्छा पैसा मिल रहा है, ₹50 मतलब डबल मिल रहा है अपनी बीवी से, तो वो कहाँ सफ़र करेगा? इससे आप स कंक्लूड कर सकते हो कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन होते हैं। समझ आया? अब अपन बात करते हैं इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज की स्टूडेंट्स। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज देखो क्या मतलब का मतलब क्या है। एक जैसे अपनी देख लो, हमारी कंट्री का एवरेज पॉवर्टी रेशियो इज 22%, ठीक है, 21.9, 22% टू बी मोर प्रिसाइज। 2011-12 सेंसस के अकॉर्डिंग इट इज 22%। पॉवर्टी रेशियो जो अपना हेड काउंट रेशियो है वो 22% है। हमारी कंट्री का जो पॉवर्टी रेशियो है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रहा है। दैट मीन्स पॉवर्टी इज डिक्लाइनिंग इन आवर कंट्री ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, ठीक है। बट अगर हम डिफरेंट रीजन्स की बात करें, डिफरेंट स्टेट्स की बात करें, एक ही कंट्री में बहुत सारी स्टेट्स हैं। अगर हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स वो जो पॉवर्टी रेशियो है वो वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर डिक्रीज कर रहा है तो सारी की सारी स्टेट्स में पॉवर्टी रेशियो डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये चीज वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। माना पूरे कंट्री का पॉवर्टी रेशियो डिक्रीज हो रहा है, पॉवर्टी डिक्रीज हो रही है, बट स्टेट टू स्टेट इट वेरीज। हो सकता है कुछ स्टेट्स ऐसी हो जहाँ का पॉवर्टी रेशियो जब बहुत ज्यादा हो, कुछ स्टेट्स ऐसी हो सकती है जहाँ का पॉवर्टी रेशियो बहुत कम हो, कुछ स्टेट्स ऐसी हो सकती है जहाँ का पॉवर्टी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो, उन्होंने अपने आप को डिक्लाइन करने में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। तो डिफ स्टेट टू स्टेट वो वेरी करता है। यही चीज़ अपन पढ़ेंगे इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ में। अपन ये टॉपिक लेंगे नेक्स्ट टाइम पे। अभी के लिए सिर्फ थोड़ा-सा आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी वाला टॉपिक विल बी कवरिंग टुमारो। ठीक है? अभी नाउ for now students there are certain questions and you have to tell me the answers of those questions in comments. ठीक है? First question is who all are called as the poorest of the poor? Poorest of the poor की टैग किसको मिला हुआ है? Who all are called poorest of the poor? ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स टेल मी द टू वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स आपको बताने हैं, दो वल्नरेबल ग्रुप्स जिसमें हमने डिवाइड किया, मैंने आपको बताया है। ठीक है, that's it for today students. I hope you understood everything, and still if you went out of query, feel free to ask me. So thank you and bye bye.